Good morning, dear students. Today we are going to start with our chapter number 2, evaluation of storage. What is storage, beta? Storage mean where we can store our things, our data in your system. Let's begin with page number 28, that is data. What is data? But data is a collection of numbers, characters, symbols, that are stored in a computer system, right? Whatever we are entered in a computer, that is known as a data. It may be beta numbers, it may be characters, it may be any symbols like exclamatory, question mark sign, comma, full stop. These all are a symbols, right? So anything that we enter in a computer, that is known as a data. Information, when computer processed it, it become in a meaningful form, that is known as a beta information. Now let's move further. Here we are having three terms, that is storing, retrieving and processing. Storing, as its name signifies, means storing means beta to store something in your computer. You can store in computer itself, or you can store your data in your secondary devices, right beta? Secondary devices like pen drive, CD, DVD, memory card, hard disk. Hard disk of a two type beta, it's internal and external. If you want to store large amount of data, then you can use external extra hard disk with you to keep your data safe. Okay beta. So next is bacha retrieving. What do you mean by retrieving? Retrieving means get back, restore. When by mistake you have lost your data, so you can then you can get it from your recycle bin. This is the good example for this. If you have so many songs and by mistake you have deleted that one, then you go to recycle bin and you can get option of restore over there, and you can get your data, your music back. Restore means get back your data or restore data. ठीक है बेटा. Third one is processing. Now what is processing? Processing beta, it always internal and it always move work in the background of the computer. ठीक है बेटा. जो प्रोसेसिंग है वो ऑलवेज चलती ही रहती है कंप्यूटर में, वो कभी भी विजिबल नहीं होती है हमें. ठीक है. सपोज यू एंटर्ड 3+3, राइट. आपने कंप्यूटर में डाल दिया, आपको इसका रिजल्ट चाहिए, राइट. बट जो कैसे वो रिजल्ट आएगा, कैसे उस चीज़ की प्रोसेसिंग होगी, है ना, वो तो दैट नोज अ कंप्यूटर. आपको तो आपका आंसर चाहिए 3+3 6, है ना. वो 6 कैसे आया, वो कैसे उसने सॉल्व किया, दैट इज नोन एज अ प्रोसेसिंग. So these are the three terms. Storing means to save something. Retrieving means to restore, to get back. Process is a software program manipulating or extracting data from the stored file. ठीक है. आपकी जो डाटा है उसको शो करता है आपको, है ना. प्रोसेसिंग क्या है, एक माइंड में रखना है, ये ऑलवेज चलती रहती है, इट ऑलवेज एट द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये बेसिकली आपको विजिबल नहीं होती है. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइल एंड फोल्डर्स. नाउ व्हाट इज फाइल बेटा? फाइल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर योर इन्फॉर्मेशंस. फाइल्स में आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है. एंड व्हाट इज फोल्डर? फोल्डर मीन्स बेटा इट इज अ डिजाइन टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स. Suppose you want to store movies in your computer system. It may confusion कि आपको अभी कौन सी मूवी प्ले करनी है, आपको हिंदी करनी है, तो आप उसे फाइंड करोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो बेटर ऑप्शन क्या है बेटा, आप फोल्डर बनाओगे लाइक मूवीज. अंडर यू कैन क्रिएट सब फोल्डर्स लाइक हिंदी मूवीज, पंजाबी मूवीज, है ना. सो इट्स माइट बी ईजी टू डिटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए. इट माइट बी ईजी रेदर देन एक्सप्लोरिंग ऑल द फाइल्स, है ना बेटा. सो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ data and your folder is that is used to organize your files. ठीक है बेटा. Now next move, that is file format. Now what is file format बेटा? File can be a different types. बेटा फाइल्स जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती है. ऐसा नहीं है कि सारी फाइल्स एक ही फॉर्मेट में सेव हो जाएंगी, है ना. इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं एंड सो ऑन. ठीक है. हमारे पास बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं. तो बेसिकली हम एक एक्सटेंशन लगाते हैं बेटा. एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप कोई भी फाइल बेटा सेव करते हो, आप वहाँ पे आप सपोज आपने राम लिख दिया फाइल का नेम, है ना. राम के बाद वहाँ पे डॉट के बाद 3 वर्ड्स आ जाएंगे बच्चा, है ना. दैट इज नोन एज अ एक्सटेंशन. डॉट के बाद 3 वर्ड्स आएंगे ही, श्योरली आएंगे वहाँ पे. ठीक है. सो फाइल फॉर्मेट इज द वे
A file is encoded and saved into the computer. It tells the computer what to do when file is open. ये आप एक्सटेंशन जो है वो आपको बताएगी, अगर आपने म्यूज़िक फाइल ओपन की है वो कंप्यूटर को कमांड देगी कि नाउ प्ले द म्यूज़िक, वो एक्सटेंशन है ना। इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा एनकोडिंग। एनकोड क्या होता है? टू चेंज द इंफॉर्मेशन इनटू अ सेट ऑफ लेटर्स। मीन्स अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हो, लाइक यू कैन से कंप्यूटर नोज ओनली वन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी, है ना। यू एंटर समथिंग इन द कंप्यूटर दैट इज इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। बेटा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, तो कंप्यूटर उसे पहले चेंज करेगा उस इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से, मीन्स उसे बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा बेटा, ठीक है। जब बाइनरी में चेंज करेगा, दैट चेंज करने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द एनकोडिंग, ठीक है बेटा। सो वी आर हैविंग सम फोल्डर्स, सम एक्सटेंशन, सॉरी। फर्स्ट वन इज ऑडियो एक्सटेंशन। ऑडियो एक्सटेंशन क्या है बेटा? आपकी ऑडियो फाइल्स की, म्यूजिक की आपकी एक्सटेंशन है .mp3, वीडियो फाइल्स की .mp4 एंड इमेजेस फाइल की आपकी है .png और .jpeg, ठीक है, दैट इज इमेजेस, पिक्चर्स, योर फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट इज बेटा एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स। एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स मीन्स वेयर यू कैन मेक चेंजेस। एक तो आप PDF बनाते हो ना, जैसे आप होमवर्क सेंड कर रहे हो अपने टीचर को, राइट, तो उसमें यू कांट मेक चेंजेस, but in editable documents you can make changes. So for that the extension is .doc or .docs. Okay beta, again I'm repeating, file is a collection of data and folder is the place where you can organize your files, and you can store unlimited data in the folders, and folder under a folder is called subfolder. So please read this chapter carefully till page number 30, file formats. Next we will read in the next lecture. Thank you so much.